آج بہت سے ایسے نعت ہیں جو پکے سنی بن کر اہل سنت کی محفلوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، مگر حقیقت کچھ اور ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں ثبوت کے ساتھ دکھاؤں گا۔ سنیوں کی محفل میں آ کر گستاخ صحابہ، گستاخ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی شیعہ کے کلام پڑھتے ہیں، اور بعض تو ایسے کلام کہ جن میں صحابی رسول پر لعن طعن کی جاتی ہے۔ 7 فروری کو ادے پور میں ایک پروگرام ہوا جس میں سید سہیل فاطمی، جنید برکاتی اور ادے پور کے ہی ایک تفضیلی ابو تراب برکاتی نے شرکت کی، جہاں شیعہ کے کلام پڑھے گئے اور بنو امیہ کا ذکر کرتے ہوئے لعن طعن کی گئی۔ جس کے بعد باری باری ہم نے سہیل فاطمی اور جنید برکاتی کو فون کیا، جس کے بعد انہوں نے کیا کہا وہ آپ سنیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ سہیل فاطمی کیسے ممبر پر بیٹھ کر جھوٹ بول کر عوام کو بیوقوف بناتے ہیں اور اکیلے میں یہ خود کیا کرتے ہیں۔ میں آپ کو کال ریکارڈنگ اور ان کی کچھ ویڈیو بتاؤں گا، جس کو سننے اور دیکھنے کے بعد آپ ان کا اصلی چہرہ دیکھ لیں گے۔ 7 فروری کو ابو تراب نام کے اس تفضیلی نے ایک شیعہ کا کلام پڑھا، حالانکہ یہ کلام اس نے پہلے بھی محفلوں میں پڑھا ہے، جس میں بنو امیہ کا ذکر ہے اور لعن طعن کی گئی ہے۔ وہ کلام کا یہ شعر سنیں۔ کیا بات ہے، واہ! کہ اب بھی لب پہ ہنسی کا نشان باقی ہے، بہت ہی چاہا مٹانا بنو امیہ نے، مگر وہ کعبے کے شایان شان اور اسی پروگرام میں سہیل باپو نام کے یہ صاحب کیسے جھوٹ بول کر عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو صلح کلیت کا زہریلا شربت پلانے میں لگے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ابو تراب نام کے اس تفضیلی کو بچاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو تراب بھائی شیعہ کا کلام پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ حالانکہ پروگرام کے بعد سہیل فاطمی خود کیا کر رہے ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ ابو تراب بھائی رابضیوں کے کلام پڑھتے ہیں، تمہیں اتنی تکلیف ہے تو آگے تم اصلاح کرتے، ڈائریکٹ تم نے بات کرنا شروع کر دی۔ اب میرے پاس ایسے بہت سارے ناطقہ ہے، ان کی لسٹ ہے، ایسے بہت سارے کلام ہیں نبی کا لب پر جو ذکر ہے، کمال آیا، بے مثال آیا، کمال۔ یہ کلام کس کا ہے؟ یہ دیوبندی کا ہے۔ ایسے میں 2500 کلاموں کو بتا سکتا ہوں جو دیوبندی کے بھی ہیں۔ ہم یہ دیکھ کے نہیں پڑھتے کہ لکھا کس نے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی شان میں لکھا ہے۔ اگر یہ چیزیں دیکھ لیں تو آپ مارکیٹ سے کوئی چیز بھی نہیں خرید پاؤ گے، کوئی بیچنے والا کوئی اور لینے والا کون، آپ کسی جگہ بچ نہیں پاؤ گے۔ اور پروگرام کے بعد سہیل فاطمی، جنید برکاتی ابو تراب نام کے اس تفضیلی کے ساتھ بیٹھ کر جغل بندی کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں دیکھیں۔ ایک نیزے سے نقشہ ہی بدل جائے گا سارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، پرو عباس علمدار، علمدار، علمدار۔ میں نے سوچا کہ عنوان وفا پہ کچھ لکھوں، میں نے سوچا کہ عنوان وفا پہ کچھ لکھوں، میں نے لفظ عباس لکھا اور قلم توڑ دیا۔ عباس تیرا نام بھی۔ یہ ان کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے کہ یہ لوگوں کو کیسے سیادت کا لیبل دکھا کر گمراہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جنید برکاتی سے ہم نے فون پر بات کی تو یہ کیا کہتا ہے سنیں۔ ہلو، السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اور جنید بھائی خیریت سے ہو؟ الحمدللہ، فرمائیے۔ عبد القادر بول رہا ہوں بھائی۔ نمبر سیو ہے میرے پاس۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جی، میں بول رہا ہوں یار کچھ بندے شکایت کی آپ کی یار، میری شکایت کس طرح کی؟ بولو۔ بول رہے کہ یار آپ شیعہ لوگ کے کلام پڑھتے ہو۔ اچھا، شیعہ کے کلام؟ ہاں تو میں نے کیا، سب نے پڑھے تھے اسٹیج پہ، بولو کیا ہوا؟ کس کس نے پڑھے تھے؟ سب نے پڑھے، میرے کو کیا پتا۔ سب نے کون کون؟ باپو تھے، میں تھے، کیا نام ہے، ابو تراب بھائی وغیرہ سب تھے۔ یہ سب لوگ نے شیعہ کلام پڑھے، سہیل باپو نہیں پڑھے؟ نہیں، مسئلہ کیا ہے بتاؤ نا مجھے، مسئلہ بتاؤ۔ نہیں پوچھ رہا ہوں میرے بھائی، پڑھے کہ نہیں پڑھے پوچھ رہا ہوں۔ کس نے کیا کہا مجھے تو بتاؤ پہلے آپ۔ آپ سرکار نظمی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو؟ سرکار نظمی میاں رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے؟ جی۔ تو آپ کے پیر کو چھوڑ کے کہیں اور بھاگ رہے ہو آپ۔ اچھا، اچھی بات ہے، بتاؤ مجھے آپ سنی ہو کہ شیعہ ہو؟ چلو اس بات میں اپن بعد میں بات کرتے ہیں نا، میں بیٹھا ہوں پروگرام میں۔ میرے بھائی میری بات سنو پہلے۔ جی۔ آپ سنی ہو نا؟ سرکار نظمی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہو آپ؟ سید سبتن میں کا مرید ہوں میں۔ ہاں، جن کے مرید ہو آپ، تو آپ سنی ہو کہ شیعہ ہو؟
सुन्नी है। तो फिर शिया कलाम क्यों पढ़ते हो मेरे भाई? बाद में बात करते हैं इस मसले और में, ठीक है शिया ना? कलाम पढ़ने तो शिया की मजलिस में जाओ, फिर आपको सुन्नियों की मजलिस में नहीं बुलाएंगे आइंदा। कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बात करते हैं, ठीक है ना? अब ऐसे ऐसे लोग सुन्नियों की महफिल में मिंबर की जीनत बने हुए हैं जो सरकार नज़मी की कलाम छोड़कर अराज़ियों की कलाम पढ़ रहे हैं, और उसके बाद भी इन्हें ये एहसास नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। इससे आप इनके इल्म और इनकी दिमागी बवासीर का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर सुहेल फातिमी को हमने कॉल किया तो सुने ये क्या कहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। सही है, सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कह रहा था आपसे कि 7 तारीख को भी आप प्रोग्राम में आए थे ना उदयपुर में, जी सबीना के अंदर। जी तो वो जो अबू तुराब जो है, तो उसके ताल्लुक से आपने कुछ कहा था कि वो जो शिया के कलाम नहीं पढ़ता है इस तरह से उस तरह से। तो मैं आपको, मैंने ऐसी बात नहीं बोली कि वो सही पढ़ है, मैंने ये कहा था जी अगर कोई अपना मोमिन भाई कोई कलाम पढ़ता है तो उसकी इस्लाह करो। अच्छा अच्छा ये बात मैंने की। अगर इसमें कोई ये कह दे कि बापू ने ये, अच्छा तो मैंने ये मिसाल ये दी कि नबी का लब पर जो जिक्र है कलाम आया, मगर ये जो कलाम है जी, ये अहले हदीस का लिखा हुआ है, तो कई सारे लोग पढ़ते हैं। अच्छा तो पता ना हो पढ़ते तो अलग बात है, फिर उसकी इस्लाह कर देनी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। तो मैंने यही बात उनको वहाँ कही कि भाई आपको किसी की भी कोई बात बताया जाए तो उसकी इस्लाह करो। हाँ पहले इस्लाह करो, हाँ सीधे से मत मैंने मारो। कहा अगर अपने सब लोग एक दूसरे को ये कहेंगे ना तो अपने अंदर नाइतफाकी पैदा होगी। हाँ क्योंकि सही सब क्या हुआ मामला, मेरा मकसद क्या था सुने, मेरा मकसद पता है क्या था कि भाई अबू तुराब भाई को भी मैंने 2-3 बात ऐसी बोली, भाई ऐसे कलाम से बचो जिससे मतलब क्या है कि भाई कौम में वो, और कौम को भी ये बात बोली, क्योंकि जो ये हालात बन रहे हैं ना अपने अजमेर शरीफ का वाक़या देखिए तो दिल दुखता है कि भाई अपनी कौम है दोनों अपने। अजमेर शरीफ का वाक़या देखिए तो दिल दुखता है कि भाई अपनी कौम है दोनों अपने। दिल दुखता है कि भाई अपनी कौम है दोनों अपने। अपने को क्या है कि भाई उनके मुकाबला करने का है जो अपने मुखालिफिन में है। तो अपने तो अंदर में इतने झगड़े हो गए, ठीक है, और बात तो इतनी बड़ी नहीं है, ईगो की बात होती है सिर्फ। क्या होती है? ईगो की, ठीक है, और बात तो इतनी बड़ी नहीं है, ईगो की बात होती है सिर्फ। क्या होती है? ईगो की, ठीक है, और बात तो इतनी बड़ी नहीं है, ईगो की बात होती है सिर्फ। क्या होती है? ईगो की। हैदरी कलंदर कलंदर हैदरी कलंदर कलंदर हैदरी कलंदर कलंदर हैदरी कलंदर कलंदर। कोई भी कलाम पढ़ता है तो पहले उसकी इस्लाह करो, अगर वो ना माने तो फिर उसका वो करो। डायरेक्ट आप ये कहोगे कि भाई ये तो वो कलाम पढ़ता है, नहीं ये तो गलत होगा ये, क्योंकि सारे अपने लोग अपने को मिल के रहना। मैंने ये वहाँ पैगाम दिया है। मैसेज सजाने का मकसद यही होता है कि भाई अपने मुआशरे की बुराई को दूर किया जाए, ना किसी को टारगेट करके पढ़ना, ना उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने ये जुमला उनको कहा है। जो लोग वहाँ हाजिर हो तो उनको पूछ लेना क्या मैंने ये जुमला कहा है, आपको रिकॉर्डिंग उसकी मिल जाएगी। तो तुम लोगों ने मुझे बोला कि भाई ये तशरीह कलाम पढ़ते, मैंने उनको बोला कि भाई तुमने उनको तो डांटा नहीं कि भाई तुम क्यों पढ़ते हो, ये बोलना चाहिए नहीं ये, बोले हमने तो सुना है ये। तो तुम लोगों ने मुझे बोला कि भाई ये तशरीह कलाम पढ़ते, मैंने उनको बोला कि भाई तुमने उनको तो डांटा नहीं कि भाई तुम क्यों पढ़ते हो, ये बोलना चाहिए नहीं ये, बोले हमने तो सुना है ये। उस दिन में जो कलाम पढ़ा था सही साहब उसने, वो अली साहब बंदा जो है कोई कलाम पढ़ा था ना, कोई बंदा अली साहब, वो भी जो है मोहम्मद अली जो वफा है वो राजी है, वो शिया है, उसका कलाम है वो। और वो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक से भी उसका जो है मामला सही नहीं है। सुने मैंने ये आपसे बात होने के बाद मेरी 1-2 लोगों से और बात हुई ना जी, उसकी वजह से चर्चा हमारी हुई। अब ये जो पहले बात जो थी ना इसके पहले वाले से तमीर मुआविया वाली, ये मुझे नहीं पता थी। अब ये जो पहले बात जो थी ना इसके पहले वाले से तमीर मुआविया वाली, ये मुझे नहीं पता थी। अब ये जो पहले बात जो थी ना इसके पहले वाले से तमीर मुआविया वाली, ये मुझे नहीं पता थी। मेरी बात तो मैं असल में प्रोग्राम में पहुंच चुका हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। हाँ इंशाल्लाह कल मैं फोन करता हूँ आपको इंशाल्लाह से। हैदरी कलंदर कलंदर हैदरी कलंदर कलंदर हैदरी कलंदर कलंदर हैदरी कलंदर कलंदर। अजमेर शरीफ का वाक़या देखिए तो दिल दुखता है कि भाई अपनी कौम है दोनों अपने। हैदरी कलंदर कलंदर हैदरी कलंदर कलंदर हैदरी कलंदर। पहले वाले से तमीर मुआविया वाली, ये मुझे नहीं पता थी। पहले वाले से तमीर मुआविया वाली, ये मुझे नहीं पता थी।
जबकि उस वीडियो में आपने देखा कि ये कैसे खुद ही रावजी के एक कलाम में जुगलबंदी करते नजर आ रहे हैं और फोन पर ये कुछ और ही कहानी सुनाते हुए नजर आए और मिंबर पर बैठकर मक्कारी से काम लेकर लोगों को गुमराह करते हैं। गौर करने वाली बात यहाँ ये भी है कि इनका दिल अजमेर शरीफ के मुजावरों के लिए कितना धड़क रहा है। अजमेर शरीफ का वाक़या देखिए जी, तो दिल दुखता है कि भाई अपनी कौम है, दोनों अपने। अब ये लोग अहले सुन्नत के मिंबर पर बैठकर लोगों को कलाम सुनाएंगे, उन्हें ज्ञान देंगे, तो सोच ले नौजवान किस तरफ जाएगा। अवाम तो बेचारी पहले ही गुस्ल करने के तरीके से भी नावाकिफ हो गई है। अल्लाह पाक रहम फरमाए। अवाम अहले सुन्नत अच्छे से इन लोगों की हकीकत जान ले और आइंदा ऐसे लोगों को महफिलों में ना बुलाए। और इन्हें भी चाहिए कि इन्हें अगर इतना ही शिया के कलाम पढ़ने का शौक है तो लखनऊ के किसी इमाम बाड़े में जाए और वहाँ जाकर गंदगी फैलाए, ना कि अहले सुन्नत की महफिलों में ये गंदगी फैलाए। दूसरी बात, सोहेल फातिमी साहब अपनी रिकॉर्डिंग में कह रहे हैं कि अजमेर वाले तो अपने ही हैं। अजमेर शरीफ का वाक़या देखिए जी, तो दिल दुखता है कि भाई अपनी कौम है, दोनों अपने। इससे आप इनके कमजोर अकीदे का अंदाजा भी लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि ये लोग आवाम को किस तरफ ले जा रहे हैं, जबकि इन्हें चाहिए था कि ये अजमेर के उन मुजावरों को जवाब देते जो सहाबी रसूल पर भौंकते हैं और सुन्नियों को नाज़बी खारजी कहते हैं, मगर इनका दिल उनके लिए बड़ा धड़क रहा है और न जाने कितनों के दिलों में इन्होंने ये मोहब्बत डाली होगी। इससे आप इनकी फिक्र और इनके मिशन का अंदाजा भी लगा सकते हैं। उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस उदयपुर के उलमाए इकराम मुफ्तियान इकराम की बारगाह में अर्ज है कि ऐसे लोगों के बारे में अवाम अहले सुन्नत को खुलकर बताएं और जो लोग इन्हें अपने साथ मिंबर पर आइंदा बैठाएं और महफिल की जीनत बनाएं, उन पर क्या हुक्म शरा है। अगर आप खामोश रहे तो मुमकिन है आपके बच्चे कल तवजीली या रावजी हो जाए और सहाबा इकराम की गुस्ताखियां करना शुरू कर दें। हुक्म शरा बताकर अवाम पर एहसान करें ताकि साफ तौर पर मालूम हो कि ये लोग अहले सुन्नत के अकीदे पर बाकी हैं या तवजीली है या पूरे के पूरे रावजी हो चुके हैं। अवाम से भी गुजारिश है मेरे भाइयों, ऐसे लोगों को अपनी महफिलों में ना बुलाएं जो सुन्नियों के मिंबर पर आकर अपने मुंह से गंदगी फैलाते हैं, वरना कल आपके बच्चे इन्हीं के साथ इनके जैसे हो जाएंगे और सहाबा पर भौंकेंगे या भौंकने वालों की दलाली करेंगे। हाँ, अगर आपको अपने बच्चे गुस्ताखे सहाबा गुस्ताखे उम्मुल मोमिनीन बनाने हैं तो फिर वो आपकी मर्जी है, फिर आप इन्हें अपनी गोद में उठाकर अपने घर ले जाएं, मगर हरगिज अहले सुन्नत के मिंबर पर ऐसे तब्दीली जहन के मरीजों को नहीं आने दिया जाएगा। साथ ही साथ अहले सुन्नत के उन तमाम नात खां हजरात से भी गुजारिश करूंगा कि इन लोगों का बाइकआउट करें। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी गैरत बाकी है तो इनके साथ हरगिज महफिल में शिरकत ना करें, ना इन्हें अपने साथ करने दें। और अगर आप लोग भी पैसों के लिए गु खाने को तैयार हैं तो फिर आप शौक से खाएं। अब देखना यह है कि कितने ऐसे सज्जादा नशीन मुफ्ती मौलाना मुकर्रिर इन्हें महफिल में बुलाकर अवाम के सामने अपना चेहरा दिखाएंगे ताकि अवाम उन्हें भी खूब पहचान ले। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। हैदरी कलंदर कलंदर हैदरी कलंदर कलंदर हैदरी कलंदर कलंदर हैदरी कलंदर कलंदर कलंदर।